Hello, good morning students. Welcome to Scala English School online program. We have finished lesson number 4 about the simple equation. Now we are going to start with the new lesson, that is lines and angles. In the 6th standard you have already learned about this geometrical basic concepts, that is what is meant by line, what is meant by segment, ray. So I am going to revise in this session about this basic geometrical concept. Before that I will see, or I will give you some instruction related to this. You have to use, for measuring any geometrical figure, the instruments you need are, this is the scale, small scale for drawing the proper lines. Then this is the protractor, this is called protractor. So this is to measure the angle. While measuring the angle, this is the straight line and the center point is there. So you have to keep this central point here, and you have to, if you are going to measure this the angle from right to left, then you have to use the lower line, and if you are going to left to right, then you have to use this upper line. There are two markings are there. This is the lower one and this is the upper one. The lower one is for right to left and the upper one is from left to right. If you want to measure this type of angle, then you can use this one. Okay, so this is how. तो ये जो straight line है उसके ऊपर ये पूरी straight line आनी चाहिए protractor की. So this is how you have to measure the angles. Okay, this is the straight angle 90 degrees and this is the whole half circle is of 180 degree. Okay, this I will again explain you. Then this is the compass that you have to, for marking the arcs, you have to use this compass. For this also, whenever you fix the pencil should be sharp pointed, and the point of the pencil and point of the compass should match together. Then only your marking. ये नीचे भी नहीं जानी चाहिए और ऊपर भी आनी नहीं चाहिए pencil, otherwise your angle or the arc may not be accurate. Okay, so that's why just this, keep in mind this type of instructions that I have given. Now I will start with this concept, line. What is mean by line? So this is a line where two arrows are there and AB points are given on the line, and this is the line L. So what is line L? It is line segment which it is in one plane. When you place the points on one plane and joining these two lines infinitely, these points go pointed towards the infinity. लेफ्ट से भी और राइट से इन्फिनाइट मार्किंग है. एरो यानी कितने भी हम एक्सटेंड कर सकते हैं. दिस इज द सेगमेंट दैट कैन बी एक्सटेंडेड इन्फिनाइटली ऑन बोथ साइड्स. ओके, द सेगमेंट दैट एक्सटेंड ऑन बोथ साइड्स इन्फिनाइटली, दिस इज कॉल्ड अ लाइन. इन्फिनाइट यानी उसका हम मेजरमेंट कितना भी 2 किलोमीटर ले सकते हैं, 100,000 किलोमीटर तक हम ये बढ़ा सकते हैं. दैट्स वाई दिस एरोज आर देयर. ओके, सो दिस इज अ लाइन. देन व्हाट इज मीन बाय सेगमेंट? सेगमेंट जो होता है वो फिक्स होता है, ये फिक्स नहीं होती है. लाइन इज नॉट अ फिक्स, बट दिस सेगमेंट इज अ फिक्स विद इन दीज 2 पॉइंट्स. ये 2 पॉइंट के अंदर जो लाइन है वो फिक्स होती है, जो हम डिस्टेंस लेके हमें उसको निकालना होता है. सो व्हाट इज सेगमेंट? A line having 2 fixed points. Okay, a line having 2 fixed points is called a segment. These are the 2 fixed points. उसके अंदर जो line है, that is called segment. Line is not fixed. Okay, it extends towards both in the both ends, on both ends infinitely. Then ray. रे में क्या है, एक फिक्स पॉइंट है और दूसरी तरफ वो एक्सटेंड कितनी भी लंबी एक्सटेंड कर सकते हैं. So what is mean by ray? A line that have a fixed point and extends infinitely on the other end. यहाँ पे दोनों लाइन में हम extend infinitely कर सकते हैं. सेगमेंट में हम extend नहीं कर सकते, it is fixed. रे में there is one fixed point, and on the other point, on the end of other point, it extends infinitely. That is called a ray. Have you understood? Then we come to angle. What is angle?
a common point where two rays meet each other or intersect. When two rays intersect each other at one common point, this is a common point. ये जो रे है और ये रे है, तो ये दोनों रे एक कॉमन पॉइंट में इंटरसेक्ट करती है और मिलती है. दैट इज कॉल्ड, दिस इज अ वर्टेक्स. सो दैट कॉमन पॉइंट इज कॉल्ड वर्टेक्स. आई हैव यहाँ पे लिखा है मैंने, दिस इज अ वर्टेक्स, दैट इज अ कॉमन पॉइंट. That is called an angle. So what is mean by angle? The two rays meet each other at one common point. That common point is called an angle. Okay. Now these are two intersecting lines. अगर यहाँ पे मैंने A और B नाम दिया तो एंगल का नाम, और ये जो है वो O दिया तो एंगल AOB. तो ये हमेशा याद रखना है, जो वर्टेक्स है वो हमेशा मिडिल में आएगा. आई विल राइट दिस, वेरी इंपॉर्टेंट, AOB. तो इसका हम नाम क्या लिखेंगे? OAB या OBA नहीं होगा. एंगल AOB, O शुड बी इन द सेंटर. जो मीटिंग पॉइंट है, वर्टेक्स है, वो दैट शुड बी इन द मिडिल. सो एंगल AOB, दिस इज अ वर्टेक्स. ये हमेशा मिडिल में होना चाहिए. दिस O शुड बी इन द मिडिल बिकॉज इंटरसेक्टिंग पॉइंट शुड बी इन द मिडिल. तो यहाँ पे दीज आर द टू इंटरसेक्टिंग लाइन्स. दोनों तरफ एरो है, सो दीज आर द लाइन्स, दीज आर नॉट रेज. तो ये आपको समझ में आना चाहिए, लाइन कौन सी है, रे कौन सा है, सेगमेंट कौन सी है. सो दिस इज सेगमेंट एंड दिस इज लाइन. ओके, लाइन के बीच में हमने दो पॉइंट्स फिक्स किए हैं. So that is also, this is also segment and this is line. Okay, so these two lines PQ and RS, they intersect at common point O. So these are called intersecting lines where they meet each other. Okay, कहाँ तो कहाँ वो एक दूसरे से क्रॉस हो रही है. ओके, ये दिख रहा है, दो लाइन्स जब क्रॉस होती है, एक दूसरे में से क्रॉस होती है, तो दीज लाइन्स आर कॉल्ड इंटरसेक्टिंग लाइन्स एंड दिस इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन. तो यहाँ पे भी एंगल बन जाता है. कौन सा होता है? P एंगल POR, एंगल ROQ, एंगल QOS एंड एंगल SOP. So this is about line, segment, ray, angle and intersecting lines. Now we proceed further with the complementary angles and supplementary. ये आपको सब लिख के लेना है. Pause this and write it down. इसके डेफिनेशन भी आपको लिखना है. What is line, segment? जो मैंने आपको बताया है वही डेफिनेशन लिखनी है. Okay? So shall I rub this? Okay. We will proceed further with the complementary angles. पहले हम बताते हैं कि हमने टाइप ऑफ एंगल्स कौन से देखे हैं. टाइप ऑफ एंगल्स कौन से हैं? तो पहले है एक्यूट, राइट एंगल्ड एंड ऑब्टूज. These are the three types of angles. तो ये एंगल्स कैसे होता है? फर्स्ट, ये पहले मैं बताती हूँ कि एंगल कैसे बनता है. तो ये है स्ट्रेट लाइन. ये हमने लाइन तो पढ़ी है. सो व्हेन यू टेक दिस स्ट्रेट लाइन, ये दो सेगमेंट्स हैं, उससे हम क्या बना सकते हैं? हम एक सर्कल बनाते हैं. ओके, वी कैन मेक अ प्रॉपर सर्कल यूजिंग दिस टू पॉइंट्स. तो यहाँ पे जो ये है, तो ये दिस इज योर हाफ सर्कल एंड दिस इज योर हाफ सर्कल. सो दिस वन हाफ सर्कल इज 180 डिग्रीज एंड दिस हाफ सर्कल इज ऑफ 180 डिग्रीज. ओके, तो ये 180 डिग्रीज है, दैट इज कॉल्ड स्ट्रेट लाइन, दैट इज स्ट्रेट एंगल. इसे ही बोलते हैं स्ट्रेट एंगल, जो कि 180 डिग्रीज का होता है. दिस एंगल, दिस यहाँ से यहाँ तक या यहाँ से यहाँ तक, कैसे भी लो, दिस इज कॉल्ड अ स्ट्रेट एंगल विच इज ऑफ 180 डिग्रीज. ओके, तो इसका अगर हमने हाफ लिया, ये सेंटर पॉइंट है सर्कल का और यहाँ से हमने ये सर्कल निकाला है. सो इफ यू यूज दिस स्ट्रेट लाइन, परपेंडिकुलर लाइन, दिस इज 90 डिग्रीज. ओके, तो ये 90 डिग्रीज होता है, ये 90 प्लस 90 180 होता है. ओके, जो भी एंगल आप लोगे इसके साथ, तो ये 90 डिग्रीज है और ये 180 डिग्रीज है, ये आपको याद रखना है. दिस इज अ राइट एंगल. 90 एंगल को ही बोलते हैं राइट एंगल. ओके, तो ये है राइट एंगल्ड ट्रायंगल. ओके, दिस इज कॉल्ड राइट एंगल ट्रायंगल. यहाँ से हमने अगर एक ट्रायंगल बनाया, सो दिस इज राइट एंगल ट्रायंगल एंड दिस इज ऑल्सो राइट एंगल ट्रायंगल. तो ये जो ट्रायंगल बनता है, दैट इज कॉल्ड
राइट एंगल्ड, क्योंकि यहाँ पे 90 डिग्रीज का एंगल बन रहा है. ओके, सो दिस कॉल्ड 90 डिग्रीज का जो एंगल है उसे बोलते हैं राइट एंगल बोलते हैं उसे. ये है स्ट्रेट एंगल, 90 डिग्रीज का है राइट एंगल. ओके, तो राइट एंगल से कौन सा भी एंगल छोटा हो, यहाँ पे आप देखो कौन सा भी लो, यहाँ पे जो भी इसके बीच में, यानी अगर यहाँ पे आप, मैंने अभी बताया था आपको कि अगर ये मैंने स्ट्रेट एंगल लिया तो यहाँ से यहाँ जो है ज़ीरो से, हम यहाँ से भी ज़ीरो लिख सकते हैं, यहाँ से भी ज़ीरो लिख सकते हैं. ओके, सो ये है, ये भी एक ज़ीरो लेंगे, ये भी एक ज़ीरो लेते हैं हम. ओके, तो ये जो है ज़ीरो, तो यहाँ से जो है ये है छोटा, यहाँ से नापा तो ये 0 से 90 है, यहाँ से नापा तो ये 0 से 90 है. ओके, सो 90 प्लस 90 इज 1. तो ये जो है इसके बीच वाले 0 से लेके 90 तक के एंगल के बीच में जो एंगल होते हैं दैट इज कॉल्ड एक्यूट एंगल. ओके, देन 90 टू 180, यानी अगर मैंने यहाँ पे 0 टू 90 लिया और यहाँ पे 180 लिया, तो ये 90 टू 180 जो होता है वो होता है ऑब्टूज. 90 टू 180 डिग्रीज के बीच में जो होता है वो होता है ऑब्टूज, और एग्जैक्टली 90 का होता है राइट एंगल्ड. हैव यू गॉट दिस? ये समझ में आ गया? 0 से लेके 90 तक डिग्रीज का जो बीच वाले एंगल्स है, दीज आर एक्यूट एंगल. देन 90 से लेके 120 तक, 180 तक है वो है ऑब्टूज एंगल. ओके, सो ऑब्टूज एंगल यानी यहाँ से ऐसे दिखेंगे वो, यहाँ से स्टार्ट होके यहाँ से स्टार्ट होके यहाँ. तो 90 यानी 91, 92, 93, 94 कौन सा भी हो दैट इज ऑब्टूज. 0 से 90 यानी 90 यानी 89, 86, 84, ये सब जो है वो हो गए हैं एक्यूट एंगल. सो हैव यू अंडरस्टूड व्हाट इज मीन बाय एंगल? द एंगल बिटवीन, उसको हम कैसे बताएंगे? द एंगल विच इज स्मॉलर दैन राइट एंगल is called acute angle, and the angle which is greater than right angle is called obtuse angle. This is how we define the acute angle. The angle less than 90 degree is acute angle. The angle more than 90 degree is obtuse angle. Okay, तो ये समझ में आ गया. 180 डिग्रीज क्या है? This is 180 degrees, this is 90 degrees, this is 90 degrees. उसमें अभी हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल देखेंगे. सो व्हाट इज मीन बाय कॉम्प्लीमेंट्री? कॉम्प्लीमेंट्री एंड सप्लीमेंट्री. कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, इसका डेफिनेशन है व्हेन द सम ऑफ मेजर ऑफ टू एंगल इज 90. सम यानी एडिशन ऑफ मेजर ऑफ टू एंगल is 90 degrees, then that is called complementary angle. Okay, when sum of measure of two angle is 90 degrees then it is called. तो ये 30 plus 60 हो सकता है. अगर मैंने 40 लिया तो 90 minus 40 कितना होता है? 50 होता है. तो 40 plus 50 हो सकता है. अगर मैंने 35 लिया तो 90 minus 35 करके लेना है. So whatever these are called, these two angles, this is a pair of angle, this pair of angle is called complementary, जिसकी sum 90 degrees हो सकती है, that is called complementary angle. Okay, so यहाँ पे दिया है can two acute angles be complementary to each other. हाँ, and whenever the two angles are complementary, each angle is said to be complement of the other angle. अगर दो एंगल जो है ये अभी 30 डिग्रीज का है और समझो ये 60 डिग्रीज का है. ओके, दिस इज 60 एंड दिस इज 30. तो ये एंगल जो है वो इस एंगल का कॉम्प्लीमेंट है, या दिस एंगल इज कॉम्प्लीमेंट टू दिस एंगल. ओके, तो उसे बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट, टू बी द कॉम्प्लीमेंट ऑफ अदर एंगल. सो हियर 30 डिग्रीज angle is complement of 60 degrees angle or 60 degrees angle is a complement with 30 degrees. Okay, तो ऐसे बोलना होता है, is the complement of the 60 degrees angle.
तो कैन टू एक्यूट एंगल्स कैन बी कॉम्प्लीमेंट टू ईच अदर। अभी ये जो है ये दो एक्यूट एंगल्स ही है, तो ये एक्यूट एंगल जो होते हैं वही सिर्फ, क्योंकि एक्यूट एंगल यानी क्या, 90 डिग्री से छोटा, तो जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होता है तो वो जो है वो 90 का दोनों का सम 90 डिग्री से, यानी दोनों भी एक्यूट एंगल ही चाहिए। तो येस, द टू एक्यूट एंगल्स कैन बी कॉम्प्लीमेंट टू ईच अदर। अभी उन्होंने अगला क्वेश्चन पूछा है कि कैन टू ऑब्ट्यूज एंगल्स कैन बी कॉम्प्लीमेंट। ऑब्ट्यूज एंगल हो सकता है क्या, 90 से अबव अगर मैंने लिया, फॉर एग्जाम्पल मैंने 91 लिया, ओके, इफ दिस इज 90 डिग्रीज, तो ये 91 हो गया, ओके, 91 है, तो ऑलरेडी हमारा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल जो है वो दोनों मिला के 90 है, तो ये हो ही नहीं सकता। तो टू ऑब्ट्यूज एंगल कैन नॉट बी कॉम्प्लीमेंट, ओके, ऑब्ट्यूज एंगल कभी भी कॉम्प्लीमेंट नहीं हो सकते एक दूसरे से। देन कैन टू राइट एंगल्स बी कॉम्प्लीमेंट टू ईच अदर। राइट एंगल्स की सम जो अगर हमने लिए, दो राइट एंगल लिए तो 90 + 90 180 होता है, लेकिन हमें क्या चाहिए, दो एंगल मिला के 90 चाहिए, सो दीज आर नॉट कॉम्प्लीमेंट टू ईच अदर, ओके। देन नेक्स्ट जो है, इसमें से आपको पेयर ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स ये करना है। 70-20 दिया है, दैट इज कॉम्प्लीमेंट्री। 75-25 कॉम्प्लीमेंट्री है क्या, उसके एडिशन करके आपको देखना है। 5 + 5 10, 7 + 2 9, 100 आता है, जो कि नहीं है कॉम्प्लीमेंट्री। 90 के उसकी सम जो है वो 90 होनी चाहिए। 48 अगर मैंने लिया, 48 और 72 लिया, ओके, तो सॉरी 52 लिया, उसकी सम देखनी है। 8 + 2 10, 1 कैरी, 5 + 4 9 + 1 100, तो इसकी सम 90 नहीं है, मीन्स दीज आर नॉट कॉम्प्लीमेंट्री, नॉट कॉम्प्लीमेंट्री, दीज आर नॉट कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, ओके। तो जिसकी सम 90 है वही कॉम्प्लीमेंट्री हो सकते हैं। 35-55 अगर लिया, 35 + 55 कितना होता है, 5 + 5 10, 90, yes, this is a complementary angle, okay. So this is how the complementary angle. Next is supplementary angle. What is mean by supplementary angle? जैसे complementary था वैसे ही supplementary भी है। Supplementary angle means when the sum of measure of two angle is 180, when the sum of two angle is 180 degrees, then that angles are called supplementary angles, okay. तो कैसे है, तो इसमें से एक पेयर एक्यूट और एक सप्लीमेंट्री हो सकता है, क्योंकि 60 + 1, ये अभी एक एक्यूट है और ये एक एब्ट्यूज है, जो कि ये 120 है और ये 60 है, तो 60 + 120 कितना हुआ, 180 हुआ। यस, दिस इज सप्लीमेंट्री एंगल, ओके। अगर मैंने 68 लिया, ये है 68, और दूसरा लिया 112, उसकी भी सम देखनी है। 68 प्लस, सॉरी, जस्ट राइट डाउन दिस डेफिनेशंस, ओके। सो 68 + 112, 8 + 2 10 0, 1 carry, 6 + 1 7 + 1 8, 180, yes, this is also a supplementary angle। तो ये supplementary angle में आप अगर देखोगे तो 1 acute है और 1 obtuse है, समझ में आ रहा है क्या, एक acute है और एक obtuse है, तो दोनों अगर obtuse हो सकते हैं क्या, नहीं हो सकते हैं, ओके। तो ये आपको ध्यान में रखना है। अगर 90-90 दो राइट एंगल लिए तो ये क्या है, सप्लीमेंट्री है, बिकॉज दिस इज 90 एंड दिस इज 90, 90 + 90 180, तो ये भी सप्लीमेंट्री हो सकते हैं। टू राइट एंगल्स कैन बी सप्लीमेंट्री, 1 acute 1 obtuse कैन बी सप्लीमेंट्री, बट 2 obtuse कैन नॉट बी सप्लीमेंट्री, ओके। तो यहाँ पे एक फिगर दिया गया है और एंगल EOB BOC सॉरी, हाँ, तो ये सप्लीमेंट्री एंगल आपको अभी समझ में आ गए, ओके। व्हेन टू एंगल्स आर सप्लीमेंट्री ईच एंगल इज जैसे कॉम्प्लीमेंट का हमने देखा वैसे ये दो एंगल्स अगर हमने देखे तो दिस 180 डिग्रीज इज सप्लीमेंट टू 60 डिग्रीज, 60 डिग्रीज इज सप्लीमेंट विद द 120 डिग्री, ओके, सप्लीमेंट ऑफ, सो बोथ द एंगल्स आर सप्लीमेंट ऑफ ईच अदर।
सो टू ऑब्ट्यूज कैनॉट बी सप्लीमेंट्री, टू एक्यूट एंगल्स कैनॉट बी सप्लीमेंट्री क्योंकि दो एक्यूट एंगल्स यानी 90 से कम हो सकते हैं. कैन टू राइट एंगल्स बी सप्लीमेंट्री? येस, टू राइट एंगल्स कैन बी सप्लीमेंट्री. तो जो पेयर दिए हैं वैसे ये करना है आपको. नेक्स्ट जो है वो एडजेसेंट एंगल्स है. व्हाट इज मीन बाय एडजेसेंट एंगल्स? एडजेसेंट एंगल्स यानी इफ आई गिवन दिस एंगल 1 and 2, so this angle is adjacent to this angle. Okay, अगर ये फिगर निकाला है, so these two angles are adjacent, these two angles are adjacent, these two angles are adjacent. यानी दो एंगल्स जो एक दूसरे के बाजू में है, these called are adjacent angles. So what are adjacent angles? The pair of angles are said to be adjacent which have common vertex and a common arm but no common interior point. Okay, adjacent angles have a common vertex. देखो यहाँ पे हमने देखा, अगर देखा A B C, okay, और ये O है, तो A O B and B O C they have a common vertex. Okay, so these two, one common arm भी चाहिए उसमें, दोनों में एक कॉमन आर्म चाहिए और कॉमन पॉइंट भी चाहिए, वर्टेक्स भी कॉमन चाहिए और एक कॉमन आर्म चाहिए. दैट इज कॉल्ड एडजेसेंट एंगल. ओके, दे हैव कॉमन आर्म एंड कॉमन वर्टेक्स. दैट इज एडजेसेंट एंगल. ओके, adjacent angle have common vertex and a common arc but no common interior points. common interior points नहीं हो सकते. Okay, if we see these are the figures, see if we take this angle, तो इसमें ये एंगल में ये आर्म कॉमन है और ये वर्टेक्स जो है वो कॉमन है, तो ये और ये एंगल एडजेसेंट हो सकते हैं. इसमें जैसे हमने देखा ये और ये एडजेसेंट है. नेक्स्ट फिगर अगर हमने लिया, ओके, तो यहाँ पे मैंने ये लिया, अगर ये एंगल और ये एंगल लिया तो हम ये एंगल जो है दिस इज वन एंगल एंड दिस इज सेकेंड एंगल. तो यहाँ पे कॉमन वर्टेक्स है क्या? नहीं, यहाँ पे दो है वर्टेक्स, तो ये जो है ये एडजेसेंट एंगल्स नहीं है. ओके, यहाँ पे दो अलग अलग वर्टेक्स है, कॉमन वर्टेक्स नहीं है. ओके, सो दिस इज नॉट अ एडजेसेंट एंगल. अभी और नेक्स्ट जो फिगर दिया है उसमें से हम फाइंड आउट करेंगे एडजेसेंट एंगल है कि नहीं. सो दिस आर द फिगर. यहाँ पे दिया है ये एंगल्स है जिसमें ए ओ बी बी ओ सी, ए सी ओ बी सी डी. ओके, ए ओ बी और उन्होंने दिया है टू ए ओ बी एंड बी ओ सी, ये दो है क्या? है, दोनों भी एंगल्स एडजेसेंट है. उसके बाद बी ओ डी एंड बी ओ सी है. क्यों? बिकॉज दे हैव बी ओ कॉमन आर्म एंड दिस इज द कॉमन पॉइंट. ओके, सो दिस इज ऑल्सो, दीज आर ऑल्सो एडजेसेंट एंगल्स. सो ये समझ में आ गया व्हाट आर द एडजेसेंट एंगल्स. They have a common vertex, they have a common arm and the non-common arm are either side of the common arm. Yes, तो ये जो है सॉरी इसमें आपको एडजेसेंट एंगल कैसे समझना है? कॉमन आर्म चाहिए, देन कॉमन वर्टेक्स चाहिए, और थर्ड जो है तीसरा पॉइंट जो है एडजेसेंट एंगल में, द नॉन कॉमन आर्म आर ऑन आइदर साइड ऑफ कॉमन आर्म. जो नॉन कॉमन है वो दोनों कॉमन के दोनों तरफ चाहिए. नॉन कॉमन आर्म्स शुड बी ऑन आइदर साइड ऑफ कॉमन आर्म. समझ में आ गया? तो यहाँ पे बी ओ सी और बी ओ डी दिया है, ये कॉमन है, ये कॉमन है, लेकिन ये जो दो साइड्स है जो अनकॉमन है वो इस तरफ और इस तरफ नहीं है. सो दिस इज नॉट अ एडजेसेंट एंगल. सो बी ओ सी एंड बी ओ डी आर नॉट एडजेसेंट एंगल्स. ये तीनों पॉइंट आपको
अगर मिलते हैं तो ये एडजेसेंट, यानी कॉमन आर्म चाहिए, कॉमन वर्टेक्स चाहिए, और अगर कॉमन साइड है तो वो दोनों, ये कॉमन आर्म के दोनों साइड में चाहिए। ये है तो ये दोनों साइड में है, ये लिया तो ये दोनों साइड में है, दिस कॉमन आर्म के दो साइड में होने चाहिए। ओके, ये दूसरी तरफ और ये उसके आगे ऐसे नहीं चलेगा। तो ये जो है ये कॉमन आर्म में ये दो साइड में नहीं है उसके। फिर अगर ये लिया तो हाँ ये लिया कॉमन साइड OC, तो ये और ये जो है ये कॉमन आर्म के एक ही साइड में है, दोनों साइड में नहीं है। तो ये जो कॉमन आर्म है उसके दोनों साइड में दूसरे अनकॉमन आर्म चाहिए, ये ध्यान में रखना है। ओके, सो दिस इज अप टू टुडे, वी विल टेक इट आफ्टरवर्ड्स in the next session. What are the other concepts that I am going to explain you in the next session, that is linear pair of angles, then vertically opposite angles. तो ये मैं यहाँ पे ही बता देती हूँ what are opposite angles, what is mean by opposite angle. तो ये जो अगर मैंने लिया, so this is opposite to this और this is opposite to this, so these are called opposite angles. ये मैंने अगर फिगर लिखा है तो this angle is opposite to this angle is opposite to this, so these are called the opposite angles. या मैंने हाँ ये ऐसे लिया तो this angle is opposite to this angle is opposite to this, तो ये these are adjacent and these are opposite angles. Okay, so these are called the opposite angles. So related with this 5.1 exercise that I will explain you in the next session. Okay, till then bye.